Okay, so hello everyone. This is our part 3 video of cardiovascular system. इसके पहले हम लोग ने ऑलरेडी दो वीडियोस में क्या-क्या डिस्कस किया है, उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं. So we had discussed what was the introduction of heart. Heart is of the size of the owner's fist, weighs about 225 gram in women and is heavier in men, weighing about 310 gram. It is a roughly cone-shaped hollow muscular organ. उसका position कहाँ है? Mediastinum, more to the left than the right, base above, apex below. Then exterior of the heart, that it is composed of three layers: pericardium, myocardium and endocardium. हमने तीनों को भी डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर लिया है. फिर हार्ट का इंटीरियर, फर्स्ट द सेप्टम विच डिवाइडेड इट इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स, देन एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व. राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ने राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिस्टिंग्विश किया है. फिर लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ने लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का डिस्टिंग्विश किया है. फिर we had also studied about the right atrioventricular valve is tricuspid valve, has three flaps, and left atrioventricular valve is mitral valve, has two cusps. Chordae tendineae, which prevents backflow of blood from ventricles to atria. We had studied about SA node, AV node, atrioventricular bundle, AV bundle or bundle of His. These are specialized neuromuscular cells capable of initiating and conducting impulses. फिर हमने ये एक इमेज देखी थी, SA node, AV node, bundle of His, right and left bundle branches, and finally Purkinje fibers. This is how the conduction cycle proceeds. Then we had talked about pulmonary circulation, systemic circulation, coronary circulation, cardiac cycle. What is the healthy heart at rest beats about 60 to 80 beats per minute. It consists of three phases: atrial systole, ventricular systole and complete cardiac diastole. Total इसका duration होता है 0.8 second का. Atrial systole is of 0.1 second, ventricular systole 0.3 second and complete cardiac diastole of 0.4 seconds. We had also studied about heart sounds and basics of EEG. लब डप ये दोनों साउंड्स के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था. एंड ECG में 5 वेव्स P, QRS कॉम्प्लेक्स एंड T वेव, इसके बारे में डिस्कस किया था. हमने ECG का डायग्राम भी देखा था. ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, इन दोनों को भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था. एंड नाउ कमिंग टू टुडेज टॉपिक, दैट इज ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन. So blood pressure. Blood pressure is the force or pressure that the blood exerts on the walls of blood vessels. ऐसा फोर्स या प्रेशर जो ब्लड एक्सर्ट करता है ब्लड वेसल्स के वॉल पे, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर. Systemic arterial blood pressure maintains the essential flow of blood into and out of the organs of the body. Keeping blood pressure within normal limits is very important. If it becomes too high, blood vessels can be damaged, causing clots or bleeding from sites of blood vessel rupture. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया तो ब्लड वेसल डैमेज हो सकती है, ड्यू टू विच इट कैन फॉर्म क्लॉट्स और ब्लीडिंग फ्रॉम साइट्स ऑफ ब्लड वेसल एंड ऑल्सो द ब्लड वेसल कैन गेट रप्चर्ड. If it falls too low, then blood flow through the tissue beds may be inadequate. अगर ब्लड प्रेशर बहुत कम है तो ब्लड फ्लो मतलब जो ब्लड अमाउंट ऑफ ब्लड दैट शुड रीच द टिश्यू विल बिकम इनएडिक्वेट. एंड ये बहुत डेंजरस हो सकता है हमारे एसेंशियल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्रेन और किडनीज. मतलब अल्टीमेटली हम लोग को ये अभी समझ आ गया है कि हमको ब्लड प्रेशर एक ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन करना जरूरी है. क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हाई हो गया तो ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती है, ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है. और अगर लो हो गया ब्लड प्रेशर तो जिस ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन को इनएडिक्वेट सप्लाई होगा ब्लड का एंड अल्टीमेटली इट वुड लीड टू सम और द अदर लॉस फॉर द ऑर्गन सिस्टम. इसीलिए ब्लड प्रेशर एक ऑप्टिमम लेवल में मेंटेन करना बहुत नेसेसरी है. ना वो हाई होना चाहिए ना वो लो होना चाहिए. The systemic arterial blood pressure, usually called simply arterial blood pressure, is the result of discharge of blood from the left ventricle into the already full aorta. Systemic arterial blood pressure, जिसी को हम लोग arterial blood pressure भी बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि जो ब्लड
लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है उसको ही, उसके वजह से जो प्रेशर रिलीज हो रहा है, प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट इज नोन एज सिस्टमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर और सिंपली आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे. डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर होते हैं. इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द पोस्चर, द जेंडर एंड एज ऑफ द इंडिविजुअल. मतलब ये सब फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं ब्लड प्रेशर को. टाइम ऑफ द डे, पोस्चर, जेंडर एंड एज ऑफ द इंडिविजुअल. Blood pressure falls at rest and during sleep. It increases with age and is usually higher in women than in men. जब हम लोग सोते हैं तब ब्लड प्रेशर रेस्ट पे आ जाता है. ब्लड प्रेशर एज के साथ इंक्रीज होता है एंड यूजुअली वुमेन्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेन. दिस वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट ब्लड प्रेशर. नाउ मूविंग फर्दर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सिस्टोल एंड डायस्टोल हमको पता है. सिस्टोल मीनिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मीनिंग रिलैक्सेशन. Systolic blood and diastolic pressures. When the left ventricle contracts and pushes blood into the aorta, left ventricle contract किया और उसने blood aorta में भेजा. The pressure produced within the arterial system is called the systolic blood pressure. मतलब systolic blood pressure is due to contraction of left ventricle and forcing the blood from left ventricle into the aorta. जो प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल को लग रहा है फोर्स करने के लिए ब्लड को इनटू द एओर्टा is called as systolic blood pressure and it is about 120 mmHg or 16 kilopascals. In complete cardiac diastole, when the heart is resting, following the ejection of blood, the pressure within the arteries is much lower and is called diastolic blood pressure. In adults, it is about 80 mmHg or 11 kilopascals. Difference between systolic and diastolic blood pressure is the pulse pressure. दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का, उसको हम लोग पल्स प्रेशर बोलते हैं. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 120 mmHg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 80 mmHg. मूविंग फर्दर, अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमको ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना है तो देखो, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने की necessity can be of two types. Sometimes due to common stress, excitement also the blood pressure changes. तो तभी the cardiovascular center can control the blood pressure और इसे हम लोग शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं. और अगर हमको ये लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के बेसिस पे करना है तो वी हैव डिफरेंट सिस्टम्स लाइक एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एंड एडीएच सिस्टम, anti-diuretic hormone system. So basically blood pressure regulation is dependent on its necessity and on the reason. अगर शॉर्ट टर्म रेगुलेशन है तो एक अलग सिस्टम काम करेगा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए रेगुलेट करना है तो एक अलग सिस्टम काम करेगा. शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के लिए वी हैव कार्डियोवैस्कुलर सेंटर CVC. It is a collection of interconnected neurons in the medulla and pons of the brain stem. The CVC receives, integrates and coordinates inputs from baroreceptors, chemoreceptors and higher centers in the brain. मतलब CVC baroreceptor प्रेशर से रिलेटेड रिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर केमिकल इंक्रीज और डिक्रीज इन द बॉडी उसके रिलेटेड रिसेप्टर्स एंड हायर सेंटर्स इन द ब्रेन. इन तीनों का रिस्पॉन्स वो इंटीग्रेट करता है, रिसीव करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है CVC. बैरो रिसेप्टर का, कीमो रिसेप्टर का और हायर सेंटर्स इन द ब्रेन का रिसीव, इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट करता है इनपुट कौन करता है? CVC, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर. कहाँ प्रेजेंट है ये? मेड्यूला में. ये शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. अभी ये कैसे करता है रेगुलेट? ओके, लेट्स सी. This is a diagram. Now carefully observe this diagram. When blood pressure rises, blood vessels decrease the sympathetic activity, vasodilation हो जाएगा and heart में increase parasympathetic activity, that is decrease heart rate. Parasympathetic activity increase हो गया मतलब heart rate decrease हो रहा है and decrease the force of cardiac concentration contraction, decrease carbon dioxide level and blood pressure falls. अभी ये हम लोग याद कैसे रखेंगे? सी, कंसिडर योर सेल्फ बिटवीन टू बॉक्सेस. दो बॉक्स के बीच में हो
और तुम यहाँ पे हो, ठीक है। और आपके पीछे भी कोई है जो कंटिन्यू आपको धक्का दे रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है आप पे, अभी इसीलिए आपका प्रेशर बढ़ गया है। तो अब आप क्या करोगे? पीछे से भी आपको कोई प्रेशर दे रहा है कंटिन्यू कि आगे जाओ, और आप पे ये दो बॉक्सेस के बीच में है, वो सिचुएशन भी आपको बहुत प्रेशर में डाल रही है, तो इसीलिए आप पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो अब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? आप उन बॉक्सेस को ऐसा शिफ्ट कर दोगे, इन शॉर्ट आप डायलेट कर लोगे खुद को। इसीलिए इफ द ब्लड प्रेशर राइजेस, ब्लड वेसल्स डायलेट, ऐसा याद रख सकते हो आप। जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो ब्लड वेसल्स डायलेट करते हैं, फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे आ जाता है। सिमिलरली व्हेन ब्लड प्रेशर फॉल्स, ये एग्जैक्टली क्या होता है कि हार्ट ब्लड उतना एफिशिएंटली पंप नहीं कर पा रहा है, और वो उतना एफिशिएंटली पंप नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब जो टिश्यूज है डिफरेंट डिफरेंट, उस पे उतना एडिक्वेट सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है ब्लड का। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे ताकि वो एफिशिएंटली ब्लड को पास कर पाए और प्रॉपर सप्लाई पहुंच पाए हर टिश्यू के पास। इसीलिए व्हेन ब्लड प्रेशर राइजेस, वी डू वैसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, एंड व्हेन ब्लड प्रेशर फॉल्स, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। अभी पैरासिम्पथेटिक और सिंपैथेटिक से ये कैसे रिलेटेड है, ये आप कोलॉजी में और अच्छे से डिस्कस कर लोगे। यहाँ पे बस मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्टली सिंपैथेटिक इंक्रीज होता है या पैरासिम्पथेटिक इंक्रीज होता है। सो अगेन वंस, व्हेन ब्लड प्रेशर राइजेस, सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीजेस, तो वैसोडाइलेशन होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप ऐसे प्रेशर वाली सिचुएशन में हो, आपके ऊपर बहुत प्रेशर बना है, तो आप वैसोडाइलेशन करोगे, मतलब जब प्रेशर बढ़ेगा तो वैसोडाइलेशन करना है ब्लड वेसल्स का। ओके, एंड व्हेन एंड हार्ट में क्या इफेक्ट हो रहा है? पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज, हार्ट रेट डिक्रीज, फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज, डिक्रीज सीओ, तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर फॉल्स। एंड व्हेन ब्लड प्रेशर फॉल्स, हार्ट में सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज, इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज इन सीओ। सी इंक्रीज इन हार्ट रेट क्यों? ताकि हार्ट और एफिशिएंटली ब्लड पंप कर पाए, और वैसो कंस्ट्रिक्शन क्यों? ताकि वो ब्लड और एफिशिएंटली हर एक टिश्यू तक पहुंच पाए, एंड अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर राइजेस। ये हो गया एक सिस्टम, द बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। एंड नेक्स्ट इज कीमो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर से शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऐसा होगा, एंड कीमो रिसेप्टर से, सी if there is increase in H plus, increase in carbon dioxide level and decrease in oxygen level, chemoreceptors get stimulated, then they stimulate cardiovascular center, and immediately it increases stroke volume, increases heart rate and increases vasoconstriction, फिर बीपी इंक्रीज हो जाएगा। इसका अपोजिट याद रख लेना, कोई भी एक याद रख लो, अपोजिट अपने आप याद रह जाएगा। नाउ मूविंग फर्दर, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपको कोलॉजी में है। Okay, so this is important for long-term regulation of blood. सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अगर आपका ब्लड वॉल्यूम लो है, ब्लड प्रेशर लो है, ब्लड में सोडियम की मात्रा कम है, तो क्या होगा? ब्लड, ये तीन स्टिमुलस किडनी को स्टिमुलेट कर देंगे। अभी किडनी हो गई हमारी स्टिमुलेट, फिर किडनी क्या करेगी? रेनिन रिलीज करेगी। ये रेनिन क्या करता है? कैटालाइज करते हैं। क्या कैटालाइज करता है? एंजियोटेंसिनोजेन का कन्वर्जन कर देता है वो एंजियोटेंसिन 1 में। फिर एंजियोटेंसिन 1 इन प्रेजेंस ऑफ एस, एस माने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। फिर ये एंजियोटेंसिन 2 एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। ये एंजियोटेंसिन 2 भी कर सकता है, और अगर आपके ब्लड में पोटेशियम की लेवल हाई है तो भी एड्रेनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट हो सकता है। अभी हो गया एड्रेनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट। ये एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या करेगा? अल्डोस्टेरॉन सिक्रेट करेगा, और ये अल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है? ये इंक्रीज करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, एंड इंक्रीज करता है एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम।
मतलब सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और पोटेशियम का एक्सक्रीशन ज्यादा होगा, जिसके वजह से ब्लड सोडियम लेवल इंक्रीजेस, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एक बार ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पे आ गया तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से सारे सिस्टम्स इनहिबिट हो जाते हैं। वंस अगेन आई रिपीट, मेन स्टिमुलस क्या था? डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज इन ब्लड सोडियम। ये तीन स्टिमुलस किडनी को स्टिमुलेट कर देते हैं कि ब्लड प्रेशर कम हो गया है, किडनी एक्टिवेट हो गई। किडनी ने क्या सीक्रेट किया? रेनिन। रेनिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजेन का कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। फिर आ गया एस पिक्चर में। एस क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारा सिक्रेट करेगा अल्डोस्टेरॉन, और अल्डोस्टेरॉन जब सिक्रेट होगा तो अल्डोस्टेरॉन क्या करता है? इंक्रीज करता है सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन और इंक्रीज करता है एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, ड्यू टू विच ब्लड सोडियम लेवल इंक्रीजेस, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड ब्लड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। एक ऑप्टिमम लेवल तक जब ब्लड प्रेशर आ जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से ये लोग किडनी को रेनिन सीक्रेट करना बंद कर देंगे और अल्टीमेटली आगे का प्रोसीजर भी बंद हो जाएगा। This was the working of renin angiotensin aldosterone system. This is one of the most important major system not only in HAP but also in Cology. So keep it in mind that you need to keep it clear always. Now blood osmotic pressure raised है, blood osmotic pressure बढ़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा? ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है। फिर ये स्टिम्युलेट करता है किसको? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दो पिट्यूटरी ग्लैंड में दो टाइप्स होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। इसमें से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिक्रेट करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो जब ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ना तो ऑस्मो रिसेप्टर्स ये स्टिमुलस रिटेन करते हैं, फिर ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जो स्टिमुलस रिटेन किया है वो पास ऑन करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनी। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो जाता है, वो ऑप्टिमम हो जाएगा। फिर उसके बाद नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन से ये बंद हो जाएगा प्रोसेस। तो ये एक प्रोसेस था, ये एडीएच का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और एक है हार्मोन दैट इज एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। वी हैड ऑलरेडी स्टडीड अबाउट एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग यू अबाउट मायोकार्डियम। सो एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड कैसे काम करता है? ब्लड वॉल्यूम जब रेज होगा तो ये स्टिम्युलेट करता है स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन एट्रिया को, ये स्टिम्युलेट करता है। फिर ये कॉज करता है रिलीज ऑफ एएनपी। एएनपी मतलब एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, due to which there is decrease in reabsorption of sodium and water by the kidneys. सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ये डिक्रीज कर देता है बाय किडनीज, ब्लड वॉल्यूम लोअर, और फिर नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन से ये इनहिबिट हो जाएगा। तो ये तीन मेन सिस्टम्स है जो एक साथ आके काम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए। इसमें से मेजर रोल प्ले हमेशा करता है रेनिन एंजियोटेंसिन ऑल्डोस्टेरॉन सिस्टम, दिस वन। And for short-term regulation, we have our cardiovascular center, which recognize, integrates, and coordinates responses from baroreceptors, chemoreceptors, and higher centers in the brain. So here we are finally completing our cardiovascular system chapter. Thank you.